फिरा हुआ है ना, MBBS, but it's not bachelor, it's master, sorry, master, okay fine, bachelor, हाँ ठीक है, हाँ तो घुमाओ फिरा हुआ, मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई, इतना ही स्ट्रगल इसमें है, ठीक है, इतनी ही मेहनत इसमें है, उतना ही डिफिकल्ट ट्रैक ये है, उतना ही आपका कमिटमेंट ये मांगता है, और उतना ही शायद आपको बोलेगा कि अपने आप को जलाओ, ठीक है। तो MBBS, one of the most sorted career, one of the most respectable, rewarding career all over the globe. MBBS is one of the medical field, one of the most prestigious field in medicine. इसके अलावा others उनको मत भूलिए, BDS, okay, are you aware? BDS, बोलिए जरा, Bachelor of Dental Sciences, okay, Bachelor of Dental Sciences. So as told by Aman sir earlier, you are aware कि ये UG courses है, exactly ये UG courses है, मतलब बेटा अगर आप PCB या you choose PCB है, I know you are guided, I'll go for this. My favor would always be for this PCB है. Why? Because maths is a lock and key. If you have been guided, so I think many of you must have gone with this desire कि हम maths नहीं छोड़ेंगे. मैं सिर्फ इतनी चीज कहूँगी, क्यों ना छोड़े? मैं सिर्फ इतना कहूँगी, जिस चीज को बेटा छोड़ोगे ना, ये आपको, ये मैथ्स है, चलो जी छोड़ देते, भाग लिए, भागते गए, वापस आए, फिर मैथ्स आगे खड़ी, और ये होगा ही होगा, जिस चीज से भागोगे वो वापस जरूर आएगी। ऐसा ही कुछ अप्लाइड है मैथ्स के साथ, ऐसा ही कुछ अप्लाइड है, वो पहला एंट्रेंस टेस्ट जो 12th पास स्टूडेंट देगा, जो बच्चा डॉक्टर के लिए एस्पायर कर रहा है, जब वो 12th से निकलेगा, उसको जो एंट्रेंस देना है, मैं कहती हूँ वो सबसे इजीएस्ट एंट्रेंस है, क्योंकि उसके बाद IAS, SSC कुछ भी ले लो, आपके साथ लाखों लोग बैठे हैं, लाखों से भी ज्यादा, और आपको नॉलेज नहीं है कौन बैठे हैं, बट मेडिकल में आपको पता है कौन बैठे हैं, आप और आपके साथ के बच्चे। ऐसा तो नहीं कोई बुड्ढा भी बैठा है, कोई 30-35 पे बैठा है, बट आप शायद जब IAS दे रहे होंगे, मैं भी बैठी होंगी, number of candidates sitting goes large number, seats उतनी, तो इकलौता एंट्रेंस जो क्लियर करना सबसे आसान है, सबसे आसान एट दैट लेवल, जब आप पढ़ाई के ही भंवर में हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप बाहर आए 12th से, इकलौता एंट्रेंस इज मेडिकल एंट्रेंस दैट टुडे स्पीक्स अप, NEET. You are aware? NEET, National, speak up, पता है? National Eligibility Cum Entrance Test. Not a worry, you are not aware, I am here to tell. National Eligibility Cum Entrance Test, NEET, a national level exam जो आपको देना होगा अगर आप अपने आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं, या फिर आप व्हाइट कोट पहनना चाहते हैं, या फिर सबसे ऊपर आई शुड से, ये दोनों आपके डिजायर्स नहीं होने चाहिए, आपका डिजायर होना चाहिए, आई से रिस्पेक्ट, and that's a career. It's a respectful career, it's a rewarding career. Okay, it's just आपके सामने कोई भी डॉक्टर आता है, you cannot speak him by his name, you say doc or doctor. That's a respect that you give. Commerce one, a science one, every student. But moreover about that, डॉक्टर इकलौती फील्ड नहीं है, उसके अलावा बहुत और फील्ड्स हैं, तो सिर्फ MBBS या सिर्फ BDS या फिर BDS के बाद और कौन से मेडिकल फील्ड्स हैं? BAMS, पता है? BHMS, Bachelor of Ayurvedic Medicinal Sciences, BHMS, Bachelor of Homeopathic Medicinal Sciences. So you are aware about it. तो ये medical fields है. You can go for paramedical fields like any of you who was interested over here to be a scientist. Scientist doesn't mean ISRO का scientist आपको बनना है. A scientist can be one who is sitting in a lab, who is working on drugs. You know, it's one of the most exploring field. आज की डेट में आप लोग चाहते हो करियर जिसमें एक्सप्लोरेशन हो, जिसमें हर दिन वो काम ना हो कि गए बैठे बोला टर वापस आए, है ना? A doctor daily deals with new patients. Daily he has got a new work. But I say doctor से भी ऊपर, those who are aspiring for here to be a scientist are more adventurous, more exploring people. So if you are a Libra, or I don't go by your zodiac sign, but if you are an exploring person, that's a good thing. You can choose to be a scientist. And scientist doesn't mean only through ISRO. A scientist means you can be a drug. You can be a drug pharmacist. That's also a field related to scientist. Scientist हर field में आता है. आप MBBS करें, MBBS के
बाद भी साइंटिस्ट करते हैं. ओनली थिंग यू वांट टू क्लियर, यू हैव टू क्लियर, दैट इज एन एंट्रेंस टेस्ट. एन एंट्रेंस टेस्ट जो मैंने बताया अब यूजी के बाद आएगा. यूजी के बाद आएगा जिसको हम कहते हैं CSIR या फिर UGC. आप में से जितने भी यहाँ पे डिजायर कर रहे हैं साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि साइंटिस्ट से भी आगे DR लगता है. अगर डॉक्टर ही लगाना एक इम्पोर्टेंट चीज है तो डॉक्टर तो एक कॉमर्स वाला भी लगा सकता है विद PhD. डॉक्टर एक साइंस वाला जस्ट PCM वाला भी लगा सकता है. तो जो मेडिसिन के लिए उनका एम शुड नॉट बी ओनली अ डॉक्टर, बट दोज हु वांट टू बी अ डॉक्टर विद रिसर्च वर्क एज देयर लाइफ एम, कि हमेशा हम रिसर्च करते रहें, उनका साइंटिस्ट अगर बनने का सपना है तो साइंटिस्ट यू कैन बिकम आफ्टर डूइंग योर UG. चूज अ UG, कुछ भी आप UG प्रोग्राम चूज करिए, मतलब टेक अप ईदर PCM और TCBM. मैथ्स तो मैं बोलूंगी ही बोलूंगी. अगर आपको TCBM चूज कर रहे हो तो दैट मींस यू हैव इंटरेस्ट इन बायोलॉजिकल साइंसेस. बायोलॉजिकल साइंसेस मतलब आप उसमें जा सकते हैं फिर कुछ बायोलॉजिकल रिलेटेड साइंटिफिक वर्क में. बायोलॉजिकल रिलेटेड साइंटिफिक वर्क में मतलब यू कैन बी अ बायो genetic engineer. Are you aware of this word genetic engineer? You all are aware of biotech, right? But are you aware of genetic engineer? So you can go for a field like genetic engineer by this thing. कौन सी thing? आपने 12th किया, 12th के बाद अपना UG चूज करेंगे आप किसमें? BSc in genetics. Okay, उसके बाद you have to give entrance test, MSc in genetics. Then ये खतरनाक टेस्ट, मतलब कहने की बात मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, एस्पायरेशन तो डॉक्टरों का बहुत होता है, पर सिर्फ इतना दिखता है यार बनते तो है नहीं, तो फिर रखेंगे. 10 बोलते हैं 10 में से 2 बनते हैं, 20 बोलते हैं 20 में से 5 बनते हैं. बनना तो बहुत मुश्किल है. ओनली थिंग इट रिक्वायर्स इज कमिटमेंट. वो कमिटमेंट आपके अंदर है नहीं है, वो तब आएगा जब आप एक चीज समझ लोगे. और मैं ये बताना चाहती हूँ 12th के बाद इकलौता एंट्रेंस यही है जो सबसे क्लियर है. ये एंट्रेंस उससे भी खतरनाक है. मतलब 12th के बाद इकलौता एंट्रेंस दैट इज इजी फॉर यू टू गिव इज द मेडिकल एंट्रेंस. दोज हु आर एस्पायरिंग टू टेक PCMB, मतलब यू कैन ऑप्ट फॉर मेडिकल बिकॉज वो इकलौता एंट्रेंस है जो बहुत इजी है. उससे आगे अगर आप भागेंगे तो आपको फिर आगे एक एंट्रेंस मिलेगा. किसके बाद? BSc के बाद. आज लिखवा लीजिए जितने भी यहाँ पे चूज करेंगे PCB से या PCM से, if you are choosing any kind of career, BSc मान लीजिए, any of you was interested here in botany, zoology, pure sciences कहते हैं मैंने, आपने BSc botany की, or any of you wants to be a teacher, lecturer, so called word lecturer you must have heard, है ना? आपने BSc की, BSc के बाद MSc. What is MSc requiring? Entrance. चलो जी MSc कर ली, कैसे? प्राइवेट से. मैं तो मुंह पे बोलूंगी, आपको अगर एंट्रेंस से भागना है तो दुनिया में सारे रास्ते बने हैं, सारे रास्ते बने हैं. आज मैथ्स खड़ी, आप मैथ्स से भाग लिए. आगे SSC, किसी ने बोला बेटा SSC की तैयारी कर, IAS की तैयारी कर. पापा मैथ्स पढ़ना पड़ रहा है. तब पढ़ लिए होते तो शायद ज्यादा अच्छा होता. माना 10th की आनी है, लेवल वही रहेगा, but that is something requiring concepts, and if you are not a one who has not studied maths in 2 years, I mean it, you will face problem. आगे आएगा maths. ऐसे ही अगर आप ये 12th के बाद के एंट्रेंस से भागेंगे तो आपको उन एंट्रेंस का सामना करना पड़ेगा जो ज्यादा खतरनाक होगा. गारंटी दे रही हूँ, आप में से बहुत उससे भी भाग लेंगे. चलो BSc कर ली, MSc प्राइवेट से, फिर एंट्रेंस किसके लिए? टीचर बनने तक के लिए. पर मैम सब तो इंटरेस्ट देते? बिल्कुल नहीं देते. लेकिन अगर करियर चाहिए टॉप का, करियर चाहिए टॉप का, नाम चाहिए गवर्नमेंट के अंदर टॉप का, तो एंट्रेंस तो देना ही पड़ेगा. सबके लिए रास्ते हैं. 12th कर ली, अच्छे नंबर नहीं लाए, प्राइवेट में घुस गए. प्राइवेट में कर रहे हैं, बहुत अच्छा, अच्छे से BSc हो रही है, फिर क्या? करियर नहीं मिल जाएगा आपको. क्यों? MSc, BSc के बाद MSc, चलो जी छोड़ देते हैं. आपने MSc भी प्राइवेट से कर ली, अब क्या? You want a career अगर टॉप का, तो you have to give some kind of entrance. If not entrance, you have to sit in an interview where there are just one vacancy, one seat. Apply कर रहे हैं BTech के लिए, नहीं क्लियर किया आपने IIT, नहीं क्लियर किया आपने IEEE, घुस गए प्राइवेट में, फिर क्या? BTech कर ली, अब क्या? MBA
स्टूडेंट, मतलब ओनली थिंग आई मीन, इससे आगे अगर आप निकल गए तो आपको बहुत चीजें सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सबका करियर तो डॉक्टर नहीं है, नहीं देना चाहते मेडिकल, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। इफ यू डोंट वांट टू गिव मेडिकल देन ड्रीम समथिंग, डू समथिंग जो आपको बहुत इजीली मिले। क्या? साइंटिस्ट। उसके लिए पहले दिन से प्रिपेयर करिए। अगर आप पीसीबी भी ले रहे हैं एम के साथ लेकिन आप मेडिकल नहीं करना चाहते, गेट अ गुड स्कोर 12th 11 बीएससी की, बीएससी में ऐसी रैंक रखिए कि आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिले। मतलब